Good morning dear students, welcome to our EVS class. This is class 4th and today we are going to do exercise of chapter 4, eating together. We have read this lesson in our earlier class, in our yesterday's class. I hope you have seen the videos and understood the contents given in this lesson. Today we are going to do exercise section A, practice exercise section A. Multiple choice questions are given here. I will tell you the question and then the answer also. The food served in a government school during the day is called dash. During the day, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चों को भोजन दिया जाता है दिन में, उसको क्या कहते हैं? That is called midday meal. Midday meal होता है बीच का meal. Okay. This is MCQ. फर्स्ट ओके, चैप्टर हमारा है 4. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? ईटिंग टुगेदर. ओके. सेकंड MCQ is schools where students study and live. स्कूल्स, वो स्कूल जहां बच्चे पढ़ते भी हैं और रहते भी हैं, आर कॉल्ड डैश. दे आर कॉल्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन डे, सेकंड डे लॉन्ग और थर्ड वन इज बोर्डिंग स्कूल. सो दे आर कॉल्ड बोर्डिंग स्कूल. BOARD, बोर्डिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ फिल-अप्स. दिस इज पार्ट बी ऑफ सेक्शन ए. पार्ट बी, fill in the blanks. First one is, we share our experiences, thoughts and dash with our family members. हम अपने जो है एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे जो अनुभव रहे हैं, वो थॉट्स, विचार एंड डैश और क्या शेयर करते हैं. हमने लेसन के बीच में से पढ़ा था, उसी में से ये फिलर्स दिए गए हैं आपको. तो फिर रिकॉल द लेसन. वी शेयर अवर एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड आइडियाज विद आवर फैमिली मेंबर्स. सो आइडियाज विल बी द आंसर ऑफ दिस फिलर. सेकंड, कम टू द सेकंड. ईटिंग टुगेदर क्रिएट्स अ बॉन्ड ऑफ डैश. ईटिंग टुगेदर, इकट्ठे खाना खाना एक बॉन्ड बनाता है. किस चीज का? डैश अमंग फैमिली मेंबर. बॉन्ड ऑफ, कौन सा बॉन्ड बनाता है वो बताइए. मैंने आपको क्लास में बताया था. बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस, बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, बॉन्ड ऑफ लव. यू कैन राइट एनीथिंग एज पर योर चॉइस. The eating together creates a bond of love among family members. I will write here love. You can write brotherhood also. Okay. Third, langar is prepared in a large dash. In a large, क्या लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाता है जो खाना, उसी को तो लंगर कहते हैं. बहुत सारा मात्रा में खाना बनाया जाता है. तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी. बोर्डिंग स्कूल्स हैव लार्ज डाइनिंग हॉल्स कॉल्ड डैश. जो बोर्डिंग स्कूल है वहां पर जब बच्चे साथ मिलकर बड़े से हॉल में डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हमने लेसन में पढ़ा था. दे आर कॉल्ड हॉस्टल मेस. दे आर कॉल्ड हॉस्टल मेस. ओके. नाउ here part C. In the part C, take a look at the following pictures. Some pictures. There are 3 pictures given in this section and you have to write the name of the occasion which are depicting in this picture. Okay. First one is children of government schools having their meal. तो इस occasion को, इस अवसर को क्या कहा जाता है जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में सभी बच्चे मिलकर खाना खाते हैं? That is called midday meal. You will write in the space provided in your box. Second picture, there are many roti, chapatis. Okay. This is a picture of Gurdwara kitchen.
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गुरुद्वारा टीचर, and in option C you can see many people are sitting at a place and they are having meal together. This is the picture of a langar. They are having langar prasad, okay, in a gurudwara. Now come to the second section of our practice exercise. This is section B. Here also some MCQs are given for you. First one is, I will erase it first, okay? Yes. Come to the section B of practice exercise. Okay. First question is given as MCQ, and first MCQ is, we can get langar prasad in a dash. Options are Gurudwara, church or hospital. Yes, we have read in the lesson that we get langar prasad in a Gurudwara. So we will correct it as right option B. So second, boarding school students have dash time for their meals. Options are given here. Option A, any. क्या एनी टाइम, किसी भी टाइम जाके बोर्डिंग स्कूल के बच्चे खाना खा लेते हैं उनकी हॉस्टल मेस में? बताइए. सेकंड, नो. थर्ड, फिक्स्ड. Yes, there are three options for the question. Boarding school students have dash times for their meals. They have any time. किसी भी टाइम तो आप जाके खाना नहीं खा सकते ना. They have fixed time for their meals. We will correct it as right. Yes, part B. Very short answer types are given. Very short, बहुत ही छोटे, जिनका आंसर आपको 1 word में और 2 word में देना होता है. Answer questions. Okay. First question is, what do we call food served at gurudwaras? What do we call food served at गुरुद्वारास? गुरुद्वारा में जो फूड हमें सर्व किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? That is called langar. You can answer this question as a word, as one word, in one word. Okay. Question number 2. Name 2 occasions when we eat together in large groups. ऐसे 2 occasions बताइए, अवसर बताइए जब हम लार्ज ग्रुप में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक बड़ा सा ग्रुप बनाते हैं और खाना खाते हैं. Name 2 occasion when we eat together in large groups. ठीक है, here is the answer. Yes, बहुत सारे ओकेजन है, हमने लेसन में रीड किए थे. बर्थडे पार्टी, वेडिंग पार्टी और फेस्टिवल्स. ओके, देन वी कैन राइट हियर. Yes, sir. These are the very short answer type question of chapter 4. We will do now short answer type question. Okay, so I will erase it.
part. Short answer questions. Yes, see what is the first question given here? How is food served in a boarding school? जो बोर्डिंग स्कूल में है, फूड भोजन कैसे सर्व किया जाता है, बच्चों को कैसे खाते हैं, वो ये सब बताना है इस क्वेश्चन में. बहुत इजी है. ओके, हाउ इज food served in a boarding school. बोर्डिंग स्कूल में भोजन कैसे सर्व किया जाता है, खाना कैसे खिलाया जाता है बच्चों को, कैसे खिलाया जाता है भाई इन बोर्डिंग स्कूल्स. इन अ boarding school, all the students, or you can say students, sit together. इकट्ठा बैठते हैं. वो कहाँ बैठते हैं इकट्ठा? इन अ लार्ज डाइनिंग हॉल. डाइनिंग हॉल, डाइनिंग का मतलब होता है जहाँ बैठकर हम खाना खाते हैं, वो वाला कमरा. डाइनिंग रूम होता है ना हमारे घर में, ऐसे ही डाइनिंग हॉल कॉल्ड. और उसका नाम क्या है? जो बोर्डिंग स्कूल में डाइनिंग हॉल होता है, हमारे घर में जो डाइनिंग रूम होता है वो डाइनिंग रूम बोलते हैं. कोई स्पेशल नाम नहीं दिया जाता, लेकिन बोर्डिंग स्कूल के डाइनिंग रूम को हम हॉस्टल मेस कहते हैं. हॉस्टल मेस. ओके, और फिर किस तरीके से किस टाइम पर दिया जाता है ये लाइन भी हम इसमें ऐड कर देंगे. दे इज यूज फॉर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स हैव फिक्स्ड टाइम फॉर देयर मील. Okay, this is done for the question first. Now come to the second question. What is the question? Why should we share our meals at school? स्कूल्स में हम अपना भोजन जो है हम खाना लाते हैं, लंच ब्रेक में खाते हैं. सबको पता है हम लोग शेयर करना पसंद करते हैं. इकट्ठे बैठकर हम शेयर करते हैं ना कि भाई आप क्या लाई और मैं क्या लाई हूँ. ठीक है, एक दूसरे का खाना खाते हैं. तो क्यों करते हैं हम ऐसा? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. वी शेयर आवर मील्स एट स्कूल. हम स्कूल में अपना खाना शेयर करते हैं क्योंकि बाय डूइंग सो, ऐसा करने से वी गेट क्लोजर टू ईच अदर. हम एक दूसरे के पास आते हैं, हमें एक दूसरे के पास आने का मौका मिलता है. एक दूसरे के पास आने का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के पास बैठ के एक दूसरे को जानने का. ठीक है, अपने विचार, एक्सपीरियंसेस, थॉट शेयर करने का. ठीक है, ईच अदर. वी ऑल्सो, जब हम खाना शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है? शेयरिंग आवर मील्स also give us chance to have varieties in our meal. हमारे खाने में जो वैरायटी आ जाती है कि कोई कुछ लेके आता है, टिफिन में कोई कुछ लेके आता है. जब हम शेयर करते हैं तो हमें तरह तरह के जो पकवान है, डिशेज है, वो खाने का मौका मिलता है. ठीक है, दिस इज डन फॉर टुडे. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास टुमारो. टिल देन बाय.